The next topic from the unit haloalkane, haloarene after the nomenclature is the nature of the CX bond. Means what kind of the bond is there, how it is getting polarized and how the bond length get affected while we are moving from top to bottom in a group. जैसे कि हम halogen को जानते हैं कि it is lie in the group 17 in a modern periodic table, which we already learned in class 11th, that जो modern periodic table it is having an 18 group and all the halogens are lie in the group 17. So here the carbon halogen है, तो here the new topic from the unit haloalkane and haloarene, that is the nature of CX bond, means the bond between the carbon and the halogen. Here C is the carbon and the X is the halogen. So what kind of the nature in this bond? The bond is formed due to the sharing of electron. As we know that carbon is having a tetravalency है carbon के पास, and what will happen to carbon के 4 other जो टोटल 4 वैलेंसीज है, जिसमें जो 3 वैलेंसीज हैं दे कैन बी satisfied with the hydrogen or alkyl depending whether it is a primary, secondary or tertiary. तो जो एक वैलेंसी है वो हैलोजन के साथ सेटिस्फाई होती है and here we are showing the electrons as all the halogens are having 7 electron at the outermost shell. और यहाँ पे जो है it formed due to the शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है जो कोवलेंट बॉन्ड है, बट हियर दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई electronegativity, that means the ability of an atom to attract the electron towards itself, that is the electronegativity. Here यहाँ पे जो shared pair of electrons है, it can we get towards, easily move towards or near to the halogen, because halogen are highly electronegative, means they can easily take one electron and become inert, because ये group 17 में है, nearest जो है वो inert gases है group 18 में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन झट से ले लेंगे, means they are very high electronegative in nature. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, due to that the bond is become high, means this bond become partial in nature. What happened, this shared pair of electrons, this electron move towards the halogen and now this carbon will attain a partial, ये जो मैंने डेल्टा का साइन बनाया है इसके साथ हम प्लस बना देंगे, this is the partial positive charge on the carbon and the halogen will attain a partial negative charge, और जो रेस्ट ऑफ दी वैलेंसीज है कार्बन की वो तो है आइदर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप ने सेटिस्फाई की है, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट दी कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and the halogen will attain a partial negative charge, and due to this partial positive and partial negative, this bond become polarized. This bond become the polarized. And one more thing, in case of the haloalkane, अगर मैं haloalkane की बात करूं तो क्योंकि हम हेलो यहाँ पे यूनिट का नाम क्या है, haloalkane and haloarenes, तो haloalkane की अगर हम बात करें, haloalkane में जो CX बॉन्ड है इसमें ये जो कार्बन होता है इट इज हैविंग अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और अगर मैं हेलोएरीन की बात करूं, हेलोएरीन्स मतलब कि रिंग है
बेंजीन रिंग जिसमें कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे हेलोजन लगा है एंड हियर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक ये डिफरेंस है कि बॉन्ड तो पोलराइज्ड ही है, बट इन हेलोएरीन्स this polarization is not that much easy, while in haloalkane this is very easy, and here the carbon is sp3 hybridized and in haloarene it is sp2 hybridized, which we can learn later. ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, why it is polarized, and यहाँ पे जो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे, जैसे भी हमें पता है कि सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, देन वी आर हैविंग अ क्लोरीन, देन ब्रोमाइन एंड देन आयोडाइन। एज वी विल मूव इन ग्रुप 17, ये ग्रुप 17 है, हेलोजेंस है ये सारे, जैसे जैसे हम डाउन की तरफ मूव करेंगे जो एटॉमिक साइज है, मींस अगर मैंने ये फ्लोरीन का साइज बनाया है तो क्लोरीन विल बी बिगर देन फ्लोरीन, एंड जो ब्रोमाइन है इट इज मोर बिगर देन दी क्लोरीन, और जो आयोडाइन है दैट इज द बिगेस्ट वन, तो ये इससे भी सबसे बड़ा हो जाएगा, लाइक दैट ये एटॉमिक साइजेस है। सो एज वी आर मूविंग डाउन द हैलोजन साइज विल गेट इंक्रीज्ड। सो यहाँ पे मैंने दिस टेबल यू कैन फाइंड इजीली फाइंड इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो, और हेल्पिंग बुक में तो ये अवेलेबल ही है। अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मींस एज वी आर मूविंग एज द डिफरेंट हेलोजेंस आर कमिंग, सो जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे, यहाँ पे सिंपल हमने मिथाइल ग्रुप लिया है, मींस वी आर टेकिंग ओनली वन कार्बन है, या हमने एक ही तरह का एल्काइल सभी के साथ मिथाइल 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 जनरल ट्रेंड शो किया है कि इफ वी आर टेकिंग ओनली एनी सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, then what will happen, as we are moving fluorine to chlorine, bromine, iodine, the bond length become big, and यहाँ जो मैंने pm लिखा है that is a picometer, जो यूनिट है बॉन्ड लेंथ की वो यहाँ पे पिकोमीटर में लिखी गई है। तो ये जो बॉन्ड है दैट इज 139, और जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज द फ्रॉम न्यूक्लियस of the atom of fluorine to the nucleus of the atom of the carbon will become 139, then 178, then 193 and 214. So you can see कि as we are moving the bond length will get increased, क्योंकि यहाँ मैंने बता दी कि साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहाँ से जो दूसरे एटम के सेंटर तक, मीन्स अगर ये कार्बन है और ये हैलोजन है तो इन दोनों के न्यूक्लियस को टच करता हुआ यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, बिकॉज जो एटम साइज है दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। और उसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी देखिए, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो एज वी आर मूविंग साइज बॉन्ड लेंथ बहुत बहुत बड़ी हो रही है, मीन्स 139 से 214 पे चले गए हैं, तो बॉन्ड इंथैल्पी की जो यूनिट है दैट इज अ किलो जूल पर मोल यहाँ लिखी हुई है, एंड दैट इज 452, एंड देन जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं जो बॉन्ड इंथैल्पी है मीन्स जो एनर्जी चाहिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, वो कम होती चली जा रही है, बिकॉज जो एटम का साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। जितना बड़ा एटम हो जाएगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, उतना ज़्यादा दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। द लास्ट जो यहाँ पे कॉलम है दैट इज अ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट जब भी यहाँ पे लिखी गई है, एंड जैसे जैसे हम लोग डाउन जा रहे हैं जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज, बिकॉज जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज अलॉन्ग द ग्रुप। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हमारा फ्लोरीन है, फिर हमारा क्लोरीन एंड ब्रोमाइन आयोडीन। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन चलते जाएंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती चली जाएगी, और जो ये हम जो पार्शियल मूवमेंट है या डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज है वो भी जो है वो कम होता चला जाएगा। तो यू कैन सी कि डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रही है। सो हियर सम वैल्यूज आर गिवन की बॉन्ड लेंथ जो है वो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, और डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन।
it is having a sp3 hybridized, and in haloarine it is sp2 hybridized. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हमें एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे एलाइलिक जो हमारा हेलो कंपाउंड्स है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर एलाइलिक है, एलाइलिक में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हमारा बेंजाइलिक में भी, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, बेंजाइलिक में भी जो कार्बन है इट इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और फिर जो हमारा विनाइलिक है, विनाइलिक में जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एराइल में दैट इज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखी तो मुझे सडनली याद आया कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक और एराइल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कार्बन व्हिच इज बेयरिंग अ हेलो atom along with it. So see you soon in the next video with more topics and more questions from the unit and from the entrance exams.